Good morning to you all. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, have you all joined the internships from any, whether it is online or offline? Okay, so let it be. So, in the last class, we are going through the questions of gate related to logic gates. So, today we will go through some of the questions which are related to logic gates. Okay. So, actually, I have shared the questions in the Google Classroom, and I think all of you or some of you have solved those questions. So, is there anybody who have gone through the questions of logic gates, what I have shared in the Google Classroom? Am I audible? Yes, sir. Okay, so if I am audible, then please reply that whether you have anybody has done the questions or solved the questions of logic gate. Yes, sir. So have you solved all the questions? No, sir. कुछ क्वेश्चन नहीं बने. ओके, कुछ क्वेश्चंस नहीं बना तो आपने मतलब क्या सारे क्वेश्चंस ट्राई किए या सम ऑफ द क्वेश्चंस आपने ट्राई किया? 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन? नहीं, 26 तक ट्राई किया. 20? पर टोटल 35 क्वेश्चन है लॉजिक गेट में, तो 26 तक ट्राई किया. ओके ओके, ठीक है. So let us move through the questions one by one. So if anybody found any difficulty in any one of the questions, then please tell me. So I am going to share the questions. So the questions will start from 1988 onwards. Okay, so are you able to see the question? So I think Yes, we have solved some of the questions in the last class, but instead I am going through the question number 1. So I think there will be no any problem in question number 1. So please tell me the answer of question number 1. Anybody? So do this question and tell me the answer. So as you can see that all these are XOR gates, and the XOR gate has a property that if both the inputs are same, the output will be 0. Okay. So in the case of gate 1, let it be gate 1, gate 2 and gate 3. तो गेट 1 का अगर आउटपुट देखें तो x दोनों ही इनपुट सेम है और सेम इनपुट के केस में द आउटपुट विल बी 0. और सेकंड वाले केस में वी हैव x हियर, सो x गेट XORed with 0. सो बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ x, अगर ये x का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पर 0 मिलेगा गेट 2 का आउटपुट. अगर x का वैल्यू 1 होगा तो हमें यहाँ आउटपुट में 1 मिलेगा. ओके, सो दिस विल बी डिपेंडेंट अपॉन x. सो गेट 2 का आउटपुट जो होगा वो x होगा क्योंकि ये x के ऊपर डिपेंडेंट है. नाउ एट द इनपुट ऑफ गेट 3 यू कैन ऑब्जर्व दैट the input is x
one input is x and the second input is also x, so the output will be what? 0. So this should be the answer. So okay, so let us move to the next question. Question number 2. I think we have done these questions in the last class, no? Okay, so we will do only those questions which are somewhat difficult. I think question number 2 is also we have discussed this question number 2 in the last class. Okay, so I am not going through it again. So question number 3 simple hai. 4 question number 4 is also we have discussed. I think it is we have to implement this expression using XNOR. So XNOR operation को कैसे दिखा सकते हैं? Next is 3.5. It is also simple. I think all of you can do this. सर 9 तक तो कर चुके थे सर. Okay, 9 तक. So 9 तक हमने सारा देख लिया था ना. ठीक है. Okay, okay. So let us move to the that 3.10. I think all of you can do this. 3.11, 3.12. These all are simple questions. Okay. So 3.1 में एक बार थोड़ा सा 3.12 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है और उसके ऑप्शंस यहाँ दिख रहे हैं आपको. यस सर. तो 3.12 में आप क्या देख पा रहे हो दैट ये सॉप के फॉर्म में है और जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं वो दिए गए हैं पॉप के फॉर्म में. ओके, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी आर इन ऑल आर इन सॉप पॉस. यस सर. सी सर डुअल फॉर्म समझ में नहीं आ रहा. ठीक है. हाँ, ये 12 भी बोल रहे हो ना. ये सर हो गया सर. तो इसमें वो सर पॉप और सॉप के फॉर्म में दिए. हाँ, तो पॉस और सॉप में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है? अगर डुअल की बात करें, जैसे यहाँ पर जो एंड दिया है, आपको यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ पर ए और बी के बीच में एंड है. हाँ, और ये जो टर्म्स हैं ए बी और ए बार सी, इनके बीच में क्या है? इनके बीच में और है. तो जब हम डुअल की बात करते हैं, जब हम डुअल फॉर्म की बात करते हैं तो एंड और से रिप्लेस हो जाता है. ओके, और एंड से रिप्लेस हो जाता है. ठीक है, तो डुअल आप लोग आसानी से बता सकते हैं. मैंने क्या कहा कि जो भी यहाँ पर गेट का ऑपरेशन दिख रहा है, जहाँ एंड है उसके जगह पे और आ जाएगा और के जगह पे एंड आएगा. सो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि कौन सा इसका डुअल है. तो लेट अस सी दैट ए बी है, ए बार सी है और बी सी है. तो ए बी है, ए है और बी सी है, और सेकंड वाले पार्ट में ए बी है और ए बार सी है. ए बी है और ए बार सी है. तो हम क्या देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन वाले क्वेश्चन के फॉर्म में जहाँ एंड है उसकी जगह में और होगा और के जगह में एंड हो जाएगा. तो डुअल का जस्ट यही मतलब है यहाँ पर. ठीक है, सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी ए, क्योंकि ए में ही हमें ऐसा दिख रहा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो 3.12 हो गया. उसके बाद आगे चलते हैं. 3.13. okay, so yes, so I think 3.13 also you can do it easily. So question क्या कहा गया है? Logic shown in figure, the required input just wait for a minute. So the required input condition ABC to make output x is equal to 1. तो output x is equal to 1 हमें चाहिए. तो दिस आउटपुट विल बी इक्वल टू 1. तो ये 1 कब मिलेगा? हम यहाँ क्या देख रहे हैं? ये कौन सा गेट है? लास्ट में एंड गेट है. एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हमें गेट का प्रॉपर्टी मालूम है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हेन एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई, ओनली इन दैट केस द आउटपुट विल बी हाई. एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये सारे के सारे इनपुट जब हाई होंगे तभी हमें आउटपुट में 1 मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ मिल गया. अभी सेकंड क्या है? यहाँ पर एक्सनॉर गेट है. सो दिस इज एक्सनॉर एंड दिस इज एक्सॉर. अब एक्सॉर की प्रॉपर्टी सभी को मालूम है. हमें यहाँ पर ये 1 चाहिए, एक्सॉर का आउटपुट हमें 1 चाहिए. तो एक्सॉर का आउटपुट हमें 1 कब मिलता है? व्हेन ए एंड बी आर अनइक्वल. व्हेन ए एंड बी आर अनइक्वल. तो एक्सॉर में हमें
यस, कोई कुछ कहना चाह रहे हो? सो XOR में दो इनपुट्स 0 1 और 1 0 हो तो तभी हमें आउटपुट में क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। और नीचे क्या है, XNOR है, तो XNOR के केस में हमें 1 कब मिलता है, तो हम यहाँ पर देख लें क्या कि जो तीसरा वाला इनपुट है एंड गेट का वो C ही है, मतलब ये C इनपुट है और ये 1 है। इसका मतलब है क्या कि यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि C का वैल्यू 1 होगा, तो C का वैल्यू 1 तो सारे ऑप्शंस में है ना। अब दूसरा क्या है कि XNOR है नीचे वाला गेट, तो नीचे वाले गेट में XNOR है और इस XNOR का आउटपुट हमें 1 चाहिए। तो XNOR के केस में आउटपुट 1 कब होता है, XNOR के केस में आउटपुट 1 कब होता है, जब व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम, यानी कि B और C दोनों ही सेम होने चाहिए XNOR के आउटपुट को हाई होने के लिए। तो B और C कहाँ सेम है, हम देख लें। B और C यहाँ सेम है, B और C यहाँ सेम है, ठीक है। अब A और B में क्या रिलेशन आ रहा था, हम क्या देख रहे थे, यहाँ पर XOR है और दोनों के लिए XOR के लिए आउटपुट हाई होने के लिए हमें इनपुट्स डिफरेंट होने चाहिए, मतलब A और B, अगर A 0 हो तो B 1 और A 1 हो तो B 0। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर A और B दोनों ही 1 है और यहाँ पर क्या है, A और B का वैल्यू एक में 0 है एक में 1 है, मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन। एक तो तरीका ये हो गया कि आप आउटपुट से चलें, और दूसरा तरीका ये है कि हम एक एक ऑप्शन को उठाकर ए का, बी का और सी का वैल्यूज यहाँ पुट करें, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन, इन दोनों तरीकों में दोनों ही सही आंसर आएगा, बट जब आप आउटपुट से चलते हैं तो इस केस में आंसर हमें जल्दी मिल सकता है, नहीं तो आपको एक एक करके ऑप्शन सारे चेक करने पड़ेंगे वेदर इनपुट्स पुट करके, ठीक है ना। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3.14. Question number 3.14. So 3.14 में हम क्या देख रहे हैं कि हमें पता करना है कि आउटपुट y क्या होगा। So can anybody tell me the answer? I am giving you 15 seconds. I am giving you 15 seconds. Tell me the output y. हेलो, Yes. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, ठीक है। एक्चुअली मैं कुछ बोल नहीं रहा था, मैंने आपको 15 seconds का टाइम दिया है ना। Okay. Has anybody got the answer? So has anybody got the answer? So we have to find out the value of y. So what is the value of y here? What will get the output? So okay, let us see. So if anybody got the answer, then please tell me. Okay, so let me do it. A and B both inputs are here, and okay, I am numbering the gates 1, 2, 3, 4, 5. Okay, there are 5 gates. So what is the output of gate number 1? It is AB bar. Okay. AB dash. Yes, AB bar. And at the gate number 2, what we have at the gate number 2, we have B here. So the output of
सो अगर यहाँ b के बाद यहाँ आप क्या देख रहे हो, एक बबल दिया हुआ है, b के बाद यहाँ एक बबल है, मतलब यहाँ पर जो इनपुट आएगा वो b बार आएगा। तो आउटपुट क्या हो जाएगा इसका, ए बी बार एंड विथ b बार इसका बार। इज इट राइट? Is it right? So we can solve it. How we can solve it? We can do it as a bar plus b bar dot b bar is पूरे का बार. Okay. So what we can write? We can write it as a bar b bar plus b bar. Okay. So we can write it as a bar b bar plus b bar. So ये b bar दो बार है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? We can write it as a bar b bar plus b bar. अभी यहाँ से b बार कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? a बार प्लस 1 b बार का बार. ओके, सो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? a बार प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 1. सो वी हैव b बार बार, सो वी हैव b ओनली. सो यहाँ पर जो ये आउटपुट आया, दिस इज नथिंग बट b. ये पूरा जो हमने कैलकुलेट किया, इसका वैल्यू आया इज इक्वल टू b. ओके, नाउ एट द इनपुट ऑफ गेट 3 वी हैव b अगेन. सो b यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी हैव एन एंड इनपुट, सो b डॉट b बार. ओके, इस तरीके से. नाउ b बार का वैल्यू क्या होता है? b बार का वैल्यू क्या होता है? 0. सो 0 बार मीन्स इज इक्वल टू 1. ये आ गया यहाँ तक का आउटपुट. अब हमें देखना है कि गेट नंबर 4 का आउटपुट क्या आएगा. गेट नंबर 4 के आउटपुट में क्या क्या इनपुट्स है? वी हैव b हियर एंड वी हैव अ c हियर. सो यहाँ से क्या मिलेगा? b डॉट c बार का बार. ओके, और यहाँ पर दूसरा इनपुट क्या है? ये है 1. तो एक इनपुट है 1 और दूसरा इनपुट है b बार प्लस c बार, b डॉट c बार का बार. तो इसे अगर हम ब्रेक करें तो हम क्या लिख सकते हैं? वी हैव b बार. ओके, यहाँ पर ये नॉर ऑपरेशन है, नॉर ऑपरेशन है, तो हम इसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें. तो इट वी हैव अ b बार प्लस c बार का बार, वी विल हैव अ c. सो अब इनका नॉर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सो ये जो आउटपुट आया है कहाँ आया है? ये यहाँ का आउटपुट है. ठीक है. सो नाउ वी हैव b बार प्लस c प्लस 1. सो b बार प्लस c प्लस 1, इसका वैल्यू क्या आएगा? विल बी इक्वल टू 1. तो ऑप्शंस में तो कोई नहीं है. सो is there anybody who has got any other answer? किसी को और कोई दूसरा आंसर भी मिला है? सर 1 प्लस b बार को सर 1 लिख सकते हैं ना? हाँ, अगर 1 प्लस b बार है, b बार का वैल्यू अगर हम 0 लिखें या 1 लिखें, दोनों में से कुछ भी लिखेंगे, तो 1 प्लस 0 का वैल्यू भी 1 आएगा, 1 प्लस 1 का भी वैल्यू 1 आएगा, है ना. तो किसी भी एक्सप्रेशन को अगर समथिंग प्लस 1 लिखा हुआ है, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. ठीक है, ये हमेशा ऐसा होगा, क्योंकि b का जो वैल्यू है 0 1 कुछ भी पुट करेंगे तो वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर और ऑपरेशन है. अगर यहाँ पर एंड ऑपरेशन होता तब जो वैल्यू रहता वो b के ऊपर डिपेंडेंट होता. अभी यहाँ पर और ऑपरेशन है, लेकिन अगर ये होता 1 डॉट b बार, तब यहाँ पर क्या आता? जो b का वैल्यू होता, बेस्ड अपॉन दैट यहाँ पर हमें वही वैल्यू मिलता. तो मान लें 1 डॉट, अगर b का वैल्यू 0 लिखते तो हमें क्या मिलता? 1 का बार, 0 का बार करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 डॉट 1 का बार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जहां पर b का वैल्यू 0 पुट किए वहां 1 मिला, और जहां b का वैल्यू 1 पुट किए वहां 0 मिला. मतलब ये मिलेगा हमें b बार ही मिलेगा.
1 डॉट बी बार अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, बी बार मिलेगा। तो ये ध्यान रखना होगा, तो वैल्यूज पुट करके हम चेक कर सकते हैं। तो जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन अवेलेबल ना ये नहीं है, कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ओके, तो जो इसका आंसर है 1 तो आ रहा है, लेकिन कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो हम इसे छोड़ देंगे, नहीं बनाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा मैं इस सॉल्यूशन को डिलीट कर रहा हूँ। सो हैव यू रिटन और टेकन द स्क्रीनशॉट? ओके, सो यस, यहाँ पर एक चेंज अगर करते हैं तो हमें आउटपुट जो मिलता है वो आउटपुट मिलता है बेस्ड अपॉन। तो यहाँ पर आप देखोगे 3.14 में या तो आप इस बबल को या इस बबल को, दोनों में से किसी एक बबल को आप हटाओ तो देखोगे कि इनमें से कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो देयर इज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन, दैट इज व्हाई वी हैव नॉट गॉट एनी वन ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है ना? ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3.15. I think all of you can got the frequency, because in this question there is a ring oscillator and the propagation delay of each inverter. Propagation delay of each inverter is given as 100 picosecond. So what is the value of pico? Pico means what? 10 to the power minus 12. 10 to the power minus 12 को हम लोग बोलते हैं क्या? पिको। तो अगर इतना है यानी कि 100 पिको सेकंड है एक इन्वर्टर का डिले, तो यहाँ पर 5 इन्वर्टर्स लगे हुए हैं, तो 5 इन्वर्टर्स का या तो डिले हम पहले निकाल लें और नहीं तो इसी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दें पहले। तो दोनों में से कोई भी हम तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, वी हैव 5 इन्वर्टर्स, सो हमें जो डिले मिलेगा वो कितने का मिलेगा, टोटल डिले 5 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी इसे 100 पिको सेकंड लिख देते हैं, पिको मीन्स 10 टू द पावर माइनस 12, इतना क्या हो जाएगा सेकंड टोटल डिले। टोटल डिले नाउ वी कैन कैलकुलेट इट, या तो हम इसे कैलकुलेट करें नहीं तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 1/t, तो 1/5 इंटू 100, या अगर इस 100 को हम छोड़ दें तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 10 हो जाएगा, 10 टू द पावर 10, सॉरी 10 टू द पावर 10 क्या यूनिट हर्ट्ज। सो 1/5 मीन्स 1/5 मीन्स व्हाट, 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। तो अभी ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ, मेगा में दिया हुआ है, मेगा में दिया हुआ है और गीगा में दिया हुआ है। मेगा मीन्स क्या होता है, मेगा मीन्स व्हाट, एंड गीगा 10 to the power 6. यस 10 टू द पावर 6, और गीगा मीन्स 10 to the power 9. 10 टू द पावर 9। ओके, सो पहले क्या था हमारे पास, 10 टू द पावर माइनस 12 था, ये 10 टू द पावर माइनस 10 था, तो ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें आंसर गीगा में मिल सकता है, क्योंकि गीगा यहाँ पर क्या है, गीगा मीन्स 10 टू द पावर 9 है, और यहाँ पर हमें मिला 0.2 इंटू 10 टू द पावर 10। तो इसे अगर 10 टू द पावर 9 करेंगे देन वी विल हैव 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 इंटू 10 टू द पावर 9 गीगा हर्ट्ज हम देख सकते हैं। ठीक है, सो इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू, तो ये जो क्वेश्चन है ये सिंपली आपका कन्वर्शन को लेकर है, इसमें और कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट है नहीं। सो यू हैव टू जस्ट कंसंट्रेट ऑन द यूनिट, क्योंकि ये जस्ट यूनिट पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3.16। सो इन द फिगर द एलईडी, यहाँ पर एक एलईडी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो किस कंडीशन में ये एलईडी ग्लो होगा, किस कंडीशन में ये एलईडी ग्लो होगा। सो लेट अस मूव टू द ऑप्शंस। सो आर यू एबल टू सी द ऑप्शंस? द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज, ये पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, emits light when both S1 and S2 are closed. Second option is
emits light when both S1 and S2 are open. Third option is emits light when only S1 and S2 is closed. Only of S1 and S2 are closed. S2 is closed. मतलब दोनों में से कोई एक close हो. और fourth option है does not emit light irrespective of the switch positions. Okay. So let us see the figure again. Okay. So from this figure, what we can observe that in which condition this LED will glow. So पहला केस था कि जब S1 and S2 both closed. Okay. Second option था S1 and S2 both open. ठीक. थर्ड ऑप्शन है दोनों S1 या S1 और S2 anyone close. और फोर्थ ऑप्शन में था एलईडी ग्लो नहीं करेगा. तो लेट अस सी. तो कोई बता सकते हो इसका क्या हो सकता है ऑप्शन, या इसका क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है कि यहाँ पर एलईडी ग्लो कब करेगा? ये बता सकते हैं मुझे कोई कि एलईडी ये ग्लो कब करेगा? ये जो एलईडी है ये कब ग्लो करेगा? So am I audible? आवाज जा रही है? यस सर. हाँ आवाज जा रही. तो ये बताएं मुझे कि ये एलईडी ग्लो कब करेगा? एलईडी फॉरवर्ड बायस में ग्लो करेगा या रिवर्स बायस में? मुझे पहले ये बताएं. बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हैं आप लोग? किसी की आवाज नहीं आ रही है. बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग पढ़े हो तो उसमें आप लोग एलईडी पढ़े होगे. एलईडी मतलब एलईडी से मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग डायोड पढ़े होगे. तो डायोड कब कंडक्ट करता है, फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में? फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है. तो एलईडी भी फॉरवर्ड बायस में यहाँ पर ग्लो करेगा. तो अब मुझे बताएं कि एलईडी अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो उसके लिए एलईडी के जो टर्मिनल्स हैं, मान लीजिए टर्मिनल 1 है और ये टर्मिनल 2 है. तो टर्मिनल 2 जो है वो टर्मिनल 1 है वो हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए और टर्मिनल 2 लोअर पोटेंशियल पर होना चाहिए. इन दैट केस ओनली दिस डायोड विल ग्लो, दिस एलईडी विल ग्लो, है ना? तो हाँ इस पोजीशन पे लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए टर्मिनल 2 और टर्मिनल 1 हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए. तो हम यहाँ पर पहले क्या देख रहे हैं कि वीसीसी को हम लोग क्या मानते हैं? वीसीसी जब 5 वोल्ट दिया हुआ है तो डिजिटल के केस में हम इसे 1 के इक्विवेलेंट मानते हैं. ठीक है. और 0 वोल्ट को 0 के इक्विवेलेंट मानते हैं. ठीक है. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या वोल्टेज मिल रहा है. तो यहाँ पर इस एलईडी को ग्लो होने के लिए जो 2 है, टर्मिनल 2 है, यहाँ पर 0 होना चाहिए क्योंकि हम डिजिटल की बात कर रहे हैं. तो या तो हमारे पास 0 होगा नहीं तो 1 होगा. मतलब यहाँ पे 0 वोल्ट होना चाहिए. तो यहाँ पर 0 वोल्ट होने के लिए ये यहाँ पर नैंड गेट लगा हुआ है. वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज अ नैंड गेट. Gate number 1, gate number 2 and gate number 3. So gate number 3 is a NAND gate. So if gate number 3 is a NAND gate, so we want here a 0. हम क्या चाहते हैं ये कि एलईडी ग्लो हो. तो एलईडी ग्लो होने के लिए इस NAND गेट 3 का आउटपुट हमें 0 मिलना चाहिए. ठीक है. अगर ये 0, तो ये 0 कब मिलेगा? NAND गेट का आउटपुट 0 कब होता है? मुझे बताए कोई कि NAND गेट का आउटपुट 0 कब होता है? NAND गेट का आउटपुट 0 कब होता है? सर जब मतलब फिर 3 केस में, पर एक केस में 0 होता है. सर कौन से केस में 0 होता है? सर अगर दोनों इनपुट 1-1 हो तो. दोनों इनपुट 1-1 हो जाए. ठीक है. तो हमें इस हमारा मोटो क्या है? इस एलईडी को ग्लो करना है. तो एलईडी को ग्लो करने के लिए टर्मिनल 2 का जो पोटेंशियल है वो लोअर पोटेंशियल होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल 1. ठीक है. तो टर्मिनल 2 पर 0 वोल्ट कब आएगा? जब
नैंड गेट का दोनों ही इनपुट हाई हो, ठीक है। तो नैंड गेट का दोनों ही इनपुट हाई है क्या, देखते हैं हम। तो नैंड गेट 3 का इनपुट हाई होने के लिए यहाँ पर XOR गेट लगा हुआ है 2, तो हमें ये देखना है हाई होना चाहिए। तो गेट 2 का आउटपुट हाई कब होगा, गेट 2 कौन सा गेट है, गेट 2 एक XOR गेट है, तो XOR गेट में आउटपुट हाई कब आता है, XOR गेट में आउटपुट हाई कब आता है, बताए मुझे कोई। XOR गेट पे फिर आउटपुट हाई दो केस में आता है, यस, फिर 0 0 1 हो या 1 0। या फिर रहने दो या नहीं yes. करते, छोड़ दो। तो दोनों इनपुट्स में से एक इनपुट हाई होना चाहिए, है ना। इफ वी हैव अ 2 इनपुट XOR गेट, then for that case we should have one of the inputs as high input, यानी कि दोनों में से एक 0 होना चाहिए, एक 1 होना चाहिए। तो हम देख लें, ये जो गेट XOR गेट 2 है, इसका एक इनपुट यहाँ से आ रहा है, और हम क्या देख रहे हैं कि ये जो टर्मिनल है, ये आप देखिए ये कहाँ से कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है VCC से। इसका मतलब है कि गेट 2 पे यहाँ पर 1 मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये 5 वोल्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। और दूसरा टर्मिनल हम इसे दूसरे कलर से करते हैं। तो ये जो दूसरा टर्मिनल है, ये कहाँ से कनेक्टेड है, ये दूसरा टर्मिनल जो है, ये भी हम क्या देख रहे हैं कि इस 5 वोल्ट से कनेक्टेड है, मतलब ये भी क्या है, ये भी हाई है, ये दोनों का दोनों ही इनपुट हाई है। तो ये दोनों का ही दोनों अगर इनपुट हाई है, तो ये स्विच ऑन हो या ऑफ हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो टर्मिनल, ये जो XOR गेट है, इस XOR गेट का दोनों ही टर्मिनल्स हाई वोल्टेज से कनेक्टेड है। ओके, तो ये स्विच S2 ओपन हो या क्लोज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एंड गेट 1 का आउटपुट। एंड गेट 1 में ये आउटपुट हाई होना चाहिए। तो एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंड गेट में आउटपुट हाई कब आता है, जब दोनों के दोनों इनपुट हाई हो। तो हम देख लें कि दोनों के दोनों इनपुट हाई है या नहीं है। ओके, सो एक इनपुट हम देख रहे हैं यहाँ से, ये कहाँ कनेक्टेड है, ये हाई वोल्टेज मतलब 5 वोल्ट से कनेक्टेड है। ओके, एंड इन द सेकंड केस आल्सो, in the first case it is connected with this 5 वोल्ट। ओके, और ये जो सेकंड वाला टर्मिनल है गेट 1 का, वो कनेक्टेड है कहाँ से, आप देख रहे हो यहाँ पर एक, अच्छा ये मुझे थोड़ा सा, ओके, सो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ये जो सेकंड टर्मिनल है, ये वाला, ये कनेक्शन यहाँ से भी दिखाया गया है, मतलब ये VC से भी कनेक्टेड है और ये स्विच S2 से भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ये क्लोज हो या ओपन हो, तो दो केसेस के लिए अलग अलग में वैल्यूज मिलेंगे। अगर इसे क्लोज कर दिया जाए, तो it will get connected with the ground, okay, but here in this case, here it is a NAND gate at gate 3, and we are getting both the inputs of XOR gate as high। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, हमें यहाँ 0 मिलेगा, क्योंकि ये XOR गेट जो 2 है, इस 2 नंबर XOR गेट का आउटपुट हमें 0 मिल रहा है स्विचेस के इररेस्पेक्टिव, क्योंकि स्विच S1 और S2 ऑन हो या ऑफ हो, उससे गेट 2 मतलब XOR गेट का जो इनपुट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और अगर NAND गेट का एक भी इनपुट अगर 0 होगा, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 नहीं मिलकर 1 मिलेगा, ठीक है, हमें आउटपुट 1 मिलेगा। तो NAND गेट का आउटपुट 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो टर्मिनल 2 का जो वोल्टेज है वो भी 5 वोल्ट ही है, क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है, मतलब हाई वोल्टेज है यहाँ भी, और टर्मिनल 1 पे भी हाई वोल्टेज है। तो दोनों ही साइड हाई वोल्टेज होने के कारण दिस LED विल नॉट ग्लो। सो S1 और S2 का पोजीशन ओपन हो या क्लोज हो, ये जो LED है वो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 दोनों का ही वोल्टेज सेम हो गया, ठीक है। सो द ऑप्शंस, द फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, द लास्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Yes, so option D will be the
Correct answer. Does not emit light irrespective of the switch position. So it is a 2 marks question asked in 2001. Okay. Let us move to the next question. Yes. So 3.17. If the input of digital circuit in the figure consisting of cascade of 20 XOR gates, I think all of you have done this, is X, then the output Y is equal to. तो Y output क्या आएगा? We have 20 XOR gates. Yes. हो गया मेरा। आवाज क्लियर नहीं आ रही है अदर्स? सर बोल रहे फिर इसका फी होगा फिर x बार। X बार होगा, कैसे होगा ये बताए? सर इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुट करके देखें, पहले तो हम लोग को 1 मिल चुका है। अगर x की जगह अगर 0 लेते हैं तो अगर 1 और 0 रहता है तो इनपुट 1 मिलेगा हम लोग को, ठीक है। अगर फिर हम लोग उसको फिर से XOR में करते हैं तो हम लोग का इनपुट 1 है। गेट 1 का आउटपुट क्या आएगा? गेट 1 गेट अगर 0 लेते हैं तो गेट 1 का आउटपुट 0 होगा। अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं तो गेट 1 का आउटपुट क्या आएगा? फिर गेट 1 का आउटपुट 1 आएगा। फिर 1 आएगा ना, 0 कैसे आएगा? और अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो फिर 1 लेते हैं तो 0 आएगा। तो 0 आएगा। इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि जो यानी कि हम जो x का वैल्यू ले रहे हैं उसका अपोजिट हमें मिल रहा है कहाँ? गेट 1 का आउटपुट में। यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं? x का जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या मिल रहा है? x बार मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ ना कि गेट 1 का जो आउटपुट है वो डिपेंडेंट है x के ऊपर, क्योंकि एक वन ऑफ द इनपुट्स इज हाई एंड अनदर इनपुट इज x, सो द आउटपुट ऑफ दिस गेट 1 इज नथिंग बट the complement of whatever the value we are putting at the value of x, isn't it? अब सेकंड गेट का यस, अब सेकंड गेट पर इनपुट क्या आ रहा है? x बार और x, तो आउटपुट क्या आएगा? सेकंड गेट का आउटपुट क्या आएगा? सेकंड गेट का आउटपुट चैप्टर 4 में राशि पहले में दिख गया था। सेकंड गेट का आउटपुट क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। क्या आएगा ये? आदर्श सर x आएगा सर। आदर्श तुमसे ज्यादा सर x आवाज आ रही है। एक मिनट सर बोल रहे हैं सर x बार और x का XOR कर रहे हैं तो आउटपुट सर x आएगा। आउटपुट x आएगा, इज इट राइट? ये फिर y इक्वल टू x होगा। ऑप्शन 2 का जो मतलब सॉरी यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? ये जो इनपुट है हमारे पास, यहाँ से x आ रहा है और यहाँ पर x बार है, तो आउटपुट क्या आएगा? x का अगर वैल्यू रखें, x का वैल्यू अगर